السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے شوکت صدیقی کا سنسنی خیز ناول جانگ لوس۔ باب نمبر 43۔ راجن پور میں سردار شاہ زور خان مزاری کے قیام کو دوسرا روز تھا۔ رحیم داد بھی اس کے ساتھ تھا۔ مزاری کو پروگرام کے مطابق جانا تو عظمت اللہ دریشک کے پاس تھا، مگر راجن پور میں عطا اللہ خان بزدار مل گیا۔ وہ اس کا پرانا ملنے والا تھا۔ اس نے اصرار کیا تو مزاری ٹھہر گیا۔ سپہر کو وہ رحیم داد کے ساتھ کار میں بیٹھ کر باہر نکلا۔ رحیم داد کو رائے بہادر ہتیو رام کی حویلی دکھائی۔ حویلی پرانی تھی لیکن بہت عالی شان تھی۔ رحیم داد کو پسند بھی آئی۔ اس وقت تک کسٹڈین کی تحویل میں تھی اور کسی کو الاٹ نہ ہوئی تھی۔ شاہ زور مزاری نے رحیم داد کا عندیہ معلوم کیا تو اس نے حویلی کے الاٹمنٹ میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ سردار مزاری کی بھی خواہش تھی کہ حویلی رحیم داد کو الاٹ ہو جائے۔ اس نے مسکرا کر کہا، میں یہ حویلی دکھانے اسی لیے لایا تھا کہ تجھے پسند ہو تو اس کی الاٹمنٹ کے لیے کوشش کی جائے، پر اس میں تو کئی مہاجر خاندان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ رحیم داد نے کہا، قبضہ لینے کے لیے ان کو بھی بے دخل کرنا ہوگا۔ اس کے لہجے سے پریشانی جھلکنے لگی۔ دلاور والا کی اراضی کی طرح اس پر بھی جھگڑا کھڑا ہوگا۔ اگر دلاور والا کی زمین کا قبضہ مل سکتا ہے تو اس کا بھی مل جائے گا۔ سردار مزاری نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ ویسے میرا خیال ہے الاٹمنٹ کے لیے درخواست تو لگا ہی دینی چاہیے۔ آگے کی آگے دیکھی جائے گی۔ بول کیا کہتا ہے؟ جیسی تیری مرضی۔ رحیم داد نے سردار مزاری کی تجویز سے اختلاف نہ کیا۔ الاٹمنٹ کی درخواست لگانے میں اپنا کیا جاتا ہے؟ میں شام کو اپنے وکیل راشد احمد انصاری کو بلاؤں گا۔ سردار مزاری نے رحیم داد کو بتایا، اس سے الاٹمنٹ کی درخواست تیار کروا لوں گا۔ آگے کی کارروائی وکیل کے مشورے سے چاکر اور گٹھوال کرتے رہیں گے۔ تجھے الاٹمنٹ کے لیے ادھر ٹھہرنا نہیں پڑے گا۔ تیرا وکیل راجن پور ہی میں ہوتا ہے؟ ہاں، وہ ادھر ہی ہوتا ہے۔ ویسے تو میرے اور بھی کئی وکیل ہیں، پر کوئی مقدمہ پیچیدہ ہو تو میری طرف سے راشد انصاری ہی پیروی کرتا ہے۔ شاہ زور خان نے رحیم داد کو مطلع کیا۔ بہت ہوشیار وکیل ہے، تو اس سے مل کر خوش ہوگا۔ دلاور والا کی زمین کی الاٹمنٹ کی درخواست بھی اسی نے تیار کی تھی۔ الاٹمنٹ دلانے میں چاکر کی مدد بھی کی تھی۔ تب تو دلاور والا کی زمین کے جھگڑے کا بھی اس کو پتہ ہوگا۔ بالکل ہوگا، پر اس سلسلے میں میری اب تک وکیل سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ شام کو تو وہ آ رہا ہے نا؟ ضرور آئے گا۔ دلاور والا کی زمین کے بارے میں اس سے مشورہ لینا ہے۔ شاہ زور خان نے رحیم داد کو بتایا۔ اس سے مشورہ لینے ہی کے لیے تو میں ادھر ٹھہر گیا۔ سوچا عظمت اللہ دریشک سے ملنے سے پہلے قانونی پہلو بھی پوری طرح سمجھ لینا چاہیے۔ ویسے تو بھی کسی وکیل سے کم قانون نہیں جانتا۔ رحیم داد نے سردار شاہ زور مزاری کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے کہا، ویسے قانونی مہارت کے معاملے میں وہ مزاری سے مرعوب بھی تھا۔ تو روز ہی کچہری لگاتا ہے، ایسے الجھے ہوئے اور پیچیدہ مقدموں کے فیصلے کرتا ہے کہ کئی بار تو میں حیران رہ گیا۔ پر وکیل وکیل ہی ہوتا ہے۔ شاہ زور خان مزاری نے انکساری کا مظاہرہ کیا۔ راشد نے دیوانی اور فوجداری ہر طرح کا قانون پڑھ رکھا ہے،
बल्कि अक्सर अपनी कचहरी के मुकदमात के बारे में उससे मशवरा भी ले लेता हूँ। जब से तेरे साथ ठहरा हूँ, मैंने तो कभी राशिद अंसारी वकील को तेरे पास मशवरा देने के लिए आते नहीं देखा। मैं उसे बहुत कम मशवरे के लिए बुलाता हूँ। पिछले दिनों उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। शाहज़ोर मज़ारी ने वजाहत की। सच पूछ तो कानून के बारे में जो कुछ मैंने सीखा वो अपने प्यू से सीखा। वो कचहरी में मुकदमात की कार्रवाई के दौरान हमेशा मुझे अपने साथ रखता था, बाद में भी उनके बारे में बताता था। वो बहुत ज़बरदस्त बलोच सरदार था। सरकारी अदालतें तक उसके फ़ैसले को मानती थीं। फ़ैसले तो तेरे भी कम ज़बरदस्त नहीं होते। रहीम दाद बदस्तूर उसे खुश करने की कोशिश करता रहा। सरदार शाहज़ोर मज़ारी मुस्कुराकर खामोश हो गया। शाम को वकील सरदार शाहज़ोर मज़ारी के पास आया। वो उधेड़ था, चेहरे मोहरे से संजीदा और बुर्दबार नज़र आता था। लिबास और वज़ाक़ता से इस्तग़ना और बेनियाज़ी झलकती थी। वो सोनीपत का रहने वाला था। तालीम दिल्ली में हासिल की थी। 1947 ईस्वी में फ़िरका वाराना फसादात की आग भड़की तो किसी न किसी तरह जान बचाकर बीवी बच्चों के साथ पाकिस्तान पहुंचने में कामयाब हो गया और मुहाजिर बन गया। कुछ अरसे लाहौर में वकालत की, मगर जमी नहीं। सोनीपत में मकान के अलावा ज़रई अराज़ी छोड़ कर आया था। उसका क्लेम दाखिल किया जो मंजूर हो गया। भाग दौड़ की तो ज़िला डेरा गाज़ी ख़ां की तहसील राजनपुर में ज़रई अराज़ी और एक मकान अलॉट हो गया। गुज़िश्ता 5 बरस से वो वहीं मुकीम था। ज़मींदारी की देखभाल के साथ साथ वकालत भी करता था। वकील जब पहुंचा तो सरदार मज़ारी के अलावा रहीम दाद और अज़ीज़ कठवाल भी मौजूद थे। सरदार मज़ारी ने रहीम दाद से वकील का तारुफ़ कराया। दिलावर वाला की अराज़ी के बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। वकील ने तमाम बातें तवज्जो से सुनी। अलॉटमेंट ऑर्डर और दूसरी मुतालिका दस्तावेज़ात का मुतालिया किया। राशिद, तू किस नतीजे पर पहुंचा? शाहज़ोर मज़ारी ने वकील की राय मालूम करनी चाहिए। ये तो जी आपको अच्छी तरह इल्म है कि अलॉटमेंट की दरख्वास्त मैंने ही तैयार की थी। मुझे इसके बारे में पहले ही से बहुत कुछ मालूम है। वकील ने इज़हार ख्याल किया। केस बहुत मजबूत है, अलॉटमेंट भी पक्का है। रह गया ज़मीन पर कब्ज़ा हासिल करने का मसला, तो ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें आम तौर पर झगड़ा खड़ा होता है। इसी झगड़े को निपटाने के लिए तो तुझसे मशवरा करना है। सरदार मज़ारी ने वकील से कहा, ये पता आगे क्या कार्रवाई करनी है। आपने अपने तौर पर इस सिलसिले में क्या सोचा? मेरा तो ये ख्याल है कि सारे राहकों को फौरी तौर पर बेदखल कर दिया जाए। शाहज़ोर मज़ारी ने अपनी राय का इजहार किया। वो कब्ज़ा देने में पहले ही तंग कर रहे हैं, आगे और ज़्यादा करेंगे। राहकों और मज़ारों को बेदखल करने के तमाम हरबे और तरीक़े आप मुझसे ज़्यादा बेहतर तौर पर जानते हैं। अब तक कितने ही मज़ारों को बेदखल कर चुके हैं। आपके लिए ये कोई नई बात नहीं। वकील ने मुस्कुराकर शाहज़ोर मज़ारी की तरफ देखा। जहाँ तक इस तनाज़े के कानूनी पहलू का ताल्लुक़ है तो ये सीधा सीधा दीवानी केस है, लेकिन इसे फौजदारी बनाना होगा, तभी काम बनेगा। वो कैसे? इस दफ़ा रहीम दाद बोला, जो अब तक खामोश बैठा था। वो इस तरह कि ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 145 के तहत अदालत से ज़मीन क़रक़ करवाई जाए। वकील ने कानूनी चाराजोई का तरीक़ाकार किसी कदर वज़ाहत से बताया। इसमें ज़्यादा लंबा चक्कर भी नहीं। थाने में सिर्फ इस मज़मून की रिपोर्ट दर्ज करानी होगी कि ज़मीन के कब्ज़े के सिलसिले में चौके मज़ारों के साथ तनाज़ा है, लिहाजा उनकी तरफ से नुक्स अमन का शदीद ख़तरा है। वो आमादा फ़साद हैं। पुलिस केस रजिस्टर करने के बाद चालान मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश कर देगी।
तब तो पुलिस के साथ साथ मजिस्ट्रेट को भी मिलाना होगा, उसकी मुट्ठी भी गर्म करनी होगी। रहीम दाद ने मुदाखलत की। चौधरी साहब, ये आपकी दर्दसरी नहीं, इसकी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। उसने मुस्कुराकर शाहजोर मज़ारी की जानिब इशारा किया। इस मामले को आप मज़ारी साहब पर छोड़ दें। उनको अच्छी तरह पता है कि पुलिस और मजिस्ट्रेट से किस तरह काम लिया जाए, किस तौर उनकी मदद हासिल की जाए। सही चौधरी, ये तेरे सोचने की बात नहीं है। राशिद ठीक कह रहा है। तुझे ना थाने जाने की ज़रूरत है, ना अदालत। सरदार मज़ारी ने गर्दन अकड़ाकर रऊनत से मूंछ पर हाथ फेरा। थानेदार और मजिस्ट्रेट खुद तेरे पास पहुंच जाएंगे। वो वकील की जानिब मुतवज्जे हुआ। राशिद, ये बता आगे क्या कार्रवाई करनी होगी? कार्रवाई तो मजिस्ट्रेट को करनी होगी। वकील खुलकर मुस्कुराया। मज़ारी साहब, मैं इस सिलसिले में क्या बता सकता हूँ? आपको तो अच्छी तरह मालूम है कि कानूनी चाराजोई के ज़रिए मज़ारों और राहकों को किस तरह बेदखल किया जाता है। आपको तो इसके अलावा भी दूसरे तमाम हरबों और तरीक़ों का अच्छी तरह पता है। मैं चाहता हूँ चौधरी को भी पता चल जाए आगे क्या क्या करना होगा। आपको तो अच्छी तरह इल्म है कि मजिस्ट्रेट ऐसे मुकदमात में आम तौर पर मज़ारे या राहक की गैर ज़री में ज़मीन ग़रक़ करने का हुक्म जारी करता है। वकील ने कानूनी चाराजोई की मज़ीद तफसील बताई। इस हुक्म के ज़रिए मज़ारे को ज़मीन के नज़दीक जाने, हल चलाने, पानी लगाने और फसल काटने से रोक दिया जाता है। ऐसी सूरत में तो मुकदमा महीनों क्या बरसों चल सकता है। रहीम दाद ने अपनी उलझन का इज़हार किया। मैंने गलत तो नहीं सोचा? आपने जी बिल्कुल ठीक सोचा। वकील ने उसके ख्याल की तायीद की। सच पूछिए तो होना भी ऐसा ही चाहिए। बल्कि आपकी तरफ से तो ये कोशिश होनी चाहिए कि मुकदमा ज़्यादा से ज़्यादा तूल पकड़ता जाए। वो क्यों? रहीम दाद ने हैरत ज़दा होकर इस्तफसार किया। वो इसलिए कि अदालत में रोज़ रोज़ की पेशियों से मज़ारा परेशान हो जाता है। मुकदमा बाजी करना हंसी ठट्ठा नहीं, कदम कदम पर रुपया खर्च करना पड़ता है। मज़ारे को इसके लिए कर्ज़ उधार लेना पड़ता है। मुकदमा जिस कदर तूल पकड़ता जाता है, कर्ज़ का बोझ इसी कदर बढ़ता जाता है। वकील के चेहरे पर गहरी संजीदगी छा गई। वो निहायत एतमाद के साथ बात कर रहा था। एक तरफ तो वो माली परेशानी का शिकार होता है, दूसरी तरफ दबाव डालने की खातिर कर्की के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने के बहाने पुलिस की जानिब से तरह तरह के चालान किए जाते हैं। थाने में बुलाकर धमकियां दी जाती हैं। आखिर वो इतना तंग आ जाता है कि समझौता करने के लिए मिन्नत समाजत करता है। ज़मींदार के पैरों पर पगड़ी डाल देता है, और जब इससे भी काम नहीं चलता तो बदहवास होकर सिर्फ ज़मीन ही नहीं, अपनी आबाई बस्ती तक छोड़कर चला जाता है। सही चौधरी, ये तो तुझे भी पता है कि लंबे मुकदमे बाजी के लिए राहक के पास ना रुपया होता है ना वक्त। वो तो कुछ ही मुद्दत बाद हौसला छोड़ बैठता है। सरदार मज़ारी ने वकील की तायीद करते हुए मज़ीद वजाहत की। तभी तो मालिक की जानिब से पेशकार को रिश्वत देकर पेशियां बढ़ाई जाती हैं, लंबी लंबी तारीखें ली जाती हैं। मैं तेरा और वकील का मतलब बिल्कुल समझ रहा हूँ। रहीम दाद ने अपने रद्द-ए-अमल का बरमला इज़हार किया। पर मैं तो इतनी मुद्दत तक इधर ठहर नहीं सकता। ये तो बहुत लंबा चक्कर है। मैंने कोटला हरकशन वापस जाकर उधर की ज़मींदारी देखनी है। कई ज़रूरी काम हैं जिनको निपटाना है। चौधरी नूर इलाही साहब, आपको इधर ठहरने की ज़रूरत भी क्या है? वकील ने उसकी मजबूरी महसूस करते हुए इज़हार ख्याल किया। आपने अगर मुझे अपना वकील मुकर्रर किया तो मुकदमे की पेशियों से तो मैं निमट लूँगा। वैसे मुनासिब तो ये होगा कि आप मुख्तारनामा देकर
मुकदमे की पैरवी और दूसरे ज़रूरी कामों के लिए किसी को अपना मुख्तार बना दें। सही चौधरी, ये तो तुझे करना ही पड़ेगा। शाहज़ोर मज़ारी ने वकील की तजवीज़ से इत्तेफाक करते हुए रहीम दाद से कहा, कटवाल को तूने मुलाजिम तो रख ही लिया है, उसी को अपना मुख्तार बना दे। तेरी गैर हाज़िरी में आगे तो उसी ने काम चलाना है। तू कहता है तो उसे मुख्तारनामा दे दूंगा। रहीम दाद ने भी इख्तिलाफ़ राय न किया, मगर साथ ही ये शर्त भी आयद की, पर सारी ज़िम्मेदारी तुझे ही लेनी होगी। अज़ीज़ कटवाल जो भी कार्रवाई करेगा तेरी इजाज़त और मशवरे ही से करेगा। इस बारे में तुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। मज़ारी ने मुस्कुराकर उसे इत्मीनान दिलाया। तू जैसा कहता है वैसा ही होगा। वकील ने जाने के लिए उठना चाहा तो सरदार मज़ारी ने उसे टोका। सही राशिद, तुझे तो ज़रूरी काम करने होंगे। एक तो तुझे कटवाल के लिए मुख्तारनामा तैयार करना होगा, और दूसरे ये कि राय बहादुर हथियोराम की हवेली अलॉट कराने के लिए चौधरी की तरफ से दरख्वास्त भी तैयार करनी होगी। मगर उस हवेली के मामले में तो बहुत झगड़े चल रहे हैं, चलने दे। शाहज़ोर मज़ारी ने वकील से कहा, दरख्वास्त लगाने में क्या जाता है, कोशिश करके देखते हैं, हो सकता है अलॉटमेंट मिल जाए। कब्ज़ा लेने के बारे में बाद में सोच लेंगे। उसने मुस्कुराकर वकील की जानिब देखा। अपना वकालतनामा भी लेता आना, चौधरी से दस्तखत करा लेना। मुकदमा चलाना पड़ा तो पैरवी तुझे ही करनी होगी। उसने कदरे तामुल किया, पर ये सारे काम जल्द ही हो जाने चाहिए। मैं सारी दस्तावेज़ात कल 10 बजे तक तैयार करके ले आऊँगा। वकील ने सरदार मज़ारी को इत्मीनान दिलाया, सुबह आने का वादा किया और उठकर चला गया। दूसरे रोज़ राशिद अहमद अंसारी वकील वक्ते मुकर्रर पर पहुँच गया, मगर वो मतलूबा दस्तावेज़ात तैयार नहीं कर सका था। उसने मुआज़रत की तो शाहज़ोर ख़ान मज़ारी ने मुस्कुरा कर कहा, फ़िक्र की कोई गाल नहीं, बाद में तैयार कर लेना। मैंने तो आज अज़मतुल्लाह दरेशक के पास जाना है, उससे भी इस सिलसिले में सुलह मशवरा करना है। तुझे उधर ही बुला लूँगा। वकील ने वकालतनामे पर रहीम दाद से दस्तखत कराए और मुतमईन होकर चला गया। सरदार शाहज़ोर मज़ारी ने राजनपुर को खैरबाद कहा। रहीम दाद और अज़ीज़ कटवाल के साथ कार में बैठकर फाजिलपुर की जानिब रवाना हुआ। सफ़र ज़्यादा लंबा न था, लेकिन धूप की तमाज़त बढ़ गई थी। लू भी चल रही थी। सड़क सुनसान थी। कहीं कहीं इक्का दुक्का राहगीर नज़र आते थे। कार फराटे भरती सड़क पर तेज़ी से दौड़ती रही। सरदार दरेशक का गांव कोट अकबर सड़क से दूर था, मगर खासा बड़ा गांव था। फाजिलपुर से नज़दीक भी था। कोट अकबर जाने के लिए एक कच्ची सड़क फाजिलपुर से जाती थी। कार फाजिलपुर पहुंचकर उसी कच्ची सड़क पर मुड़ गई। कोट अकबर में दाखिल हुई और सरदार दरेशक की हवेली के सामने जाकर ठहर गई। अज़मतुल्लाह दरेशक उस वक्त अपनी हवेली में मौजूद था। सरदार शाहज़ोर मज़ारी के आने की इत्तला मिली तो हंसता मुस्कुराता हुआ नमूदार हुआ। निहायत गर्म जोशी से शाहज़ोर मज़ारी से बगलगीर हुआ। मज़ारी ने रहीम दाद से उसका तारुफ़ कराया। वो उससे भी गले मिला, खंदा पेशानी से पेश आया। उसने बलोचों के रिवायती अंदाज में हाल अहवाल पूछने के बाद सवाल किया, सही शाहज़ोर, ये बता तू अचानक कैसे आ गया? मैं तो दोपहर की रोटी खाने के बाद शहर जाने वाला था। अच्छा हुआ तू पहले ही आ गया। उसके लहजे में इस्तजाब था। आराम से बैठकर बात होगी। शाहज़ोर ख़ान मज़ारी ने चेहरे से पसीना पोंछते हुए कहा,
یہاں تو سخت گرمی ہے، اندر چل۔ سب مہمان خانے میں پہنچے، اطمینان سے بیٹھے تو سردار تریشک نے اپنا سوال دہرایا۔ اب بتا کیسے آنا ہوا؟ شاہ زور مزاری نے اپنی آمد کی غایت بیان کی۔ عظمت اللہ تریشک نے پوری توجہ سے اس کی ایک ایک بات سنی۔ اس کے چہرے پر رفتہ رفتہ سنجیدگی طاری ہوتی گئی۔ کچھ دیر وہ سر جھکائے سوچتا رہا، پھر گویا ہوا۔ مجھے دلاور والا کی اس متروکہ اراضی کے بارے میں ٹھیک طرح پتہ ہے۔ یہ تو جھگڑے کی اراضی ہے، پہلے بھی کئی بار مہاجروں کو الاٹ ہوئی، پر قبضہ کسی کو نہ مل سکا۔ اس نے مڑ کر رحیم داد کی جانب دیکھا۔ تو نے چودھری کو کہاں پھنسا دیا؟ الاٹمنٹ لینے سے پہلے مجھ سے تو مشورہ کر لیا ہوتا۔ اس کے لہجے میں شکوہ کرنے کا انداز تھا۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، سردار مزاری نے نہایت اعتماد سے کہا۔ اب تو الاٹمنٹ لے ہی لی ہے اور زمین کا قبضہ بھی لینا ہے۔ اس نے اپنی بات پر زور دیا۔ یہ بتا تو اس سلسلے میں کیا مدد کر سکتا ہے؟ جو مدد تو چاہے گا کروں گا۔ اس نے سینے پر ہاتھ مار کر جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ جان مانگے گا تو تیرے لیے جان بھی حاضر ہے۔ تیری مدد سے تو تمندار بھی انکار نہیں کر سکتا۔ آپس کا پرانا اتحاد اور سنگت جو ٹھہرا۔ اس نے ہلکا سا کہا لگایا۔ ویسے تو میرا یار بھی ہے، تیری مدد نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو مجھے پتا تھا کہ تو پوری مدد کرے گا، ورنہ میں چودھری کے ساتھ تیرے پاس آتا ہی کیوں؟ سردار مزاری نے مسکرا کر کہا۔ یہ بتا آگے کیا کرنا ہے؟ عظمت اللہ تریشک نے اپنے کاردار غوث بخش لاشاری کو بلایا۔ وہ حاضر ہوا تو اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ تہکمانہ لہجے میں بولا، غوث، میں نے انکار نہیں سننا، چودھری کو قبضہ ملنا چاہیے۔ اس نے چہرے پر رعب اور دبدبا طاری کیا۔ یہ کام کرنا ہے اور ہر صورت میں کرنا ہے۔ عظمت اللہ نے مڑ کر سردار شاہ زور مزاری کی جانب دیکھا۔ تجھے ٹھیک طرح پتا ہے شاہ زور سے میری کتنی گہری یاری ہے۔ یہ خود چل کر میرے پاس مدد کے لیے آیا ہے، اس کی مدد تو کرنی ہی کرنی ہے۔ صحیح سردار، تو جو حکم کرے گا ویسا ہی ہوگا۔ غوث بخش لاشاری نے نہایت مستعدی سے سردار عظمت اللہ کو یقین دلایا۔ یہ بتا آگے کیا کارروائی کرنی ہوگی؟ سردار تریشک نے سوال کیا۔ دلاور والا کے کئی چھوٹے زمیندار اور راہک میرے جاننے والے ہیں، ان سے ملوں گا، پوچھ تاچھ کروں گا، یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں گا اس معاملے میں وہ کس انداز سے سوچ رہے ہیں۔ غوث بخش لاشاری نے جواب دیا۔ جب تک پورے طور پر حالات کا پتہ نہ چلے گا تب تک کوئی کارروائی کیسے کی جا سکتی ہے؟ حالات کو سامنے رکھ کر آگے کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ ادھر کی زمینداری کے معاملات کی دیکھ بھال کے لیے چودھری نے اسے لگایا ہے۔ شاہ زور مزاری نے گٹھوال کی طرف ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا۔ اس کا نام عزیز گٹھوال ہے، یہ دلاور والا گیا بھی تھا۔ غوث تو اس کی بھی سن لے، تجھے حالات کو سمجھنے میں اس سے بھی مدد ملے گی۔ عزیز گٹھوال نے بتایا۔ صحیح، تجھے یہ تو پتہ ہی ہے کہ ادھر چودھری کو 250 ایکڑ زرعی اراضی الاٹ ہوئی ہے، جس پر 18 راہک کاشت کرتے ہیں، سب ہی پرانے راہک ہیں۔ ان میں سے 8 ایسے ہیں جنہوں نے ہندو مالک کے ہندوستان جانے کے بعد زمین پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ 10 کے پاس مالکانہ حقوق ہوتے تھے، پر اب نہیں رہے۔ وہ کس طرح؟ غوث بخش لاشاری نے عزیز گٹھوال سے کرید کر پوچھا۔ صدر دفتر کے حکم پر ان کے انتقالات خارج ہو کر چودھری کے نام ہو چکے ہیں، گٹھوال نے مطلع کیا۔ پٹواری نے رجسٹر خسرہ گرداوری میں ان کا اندراج بھی کر دیا ہے۔ تب تو کام آسانی سے بن سکتا ہے۔ عظمت اللہ تریشک نے مسکرا کر تبصرہ کیا۔ غوث تو ایسا کر، پہلے ان 8 راہکوں سے ملنے کی کوشش کر
जिन के पास कभी मालिकाना हकूक नहीं रहे। उनको इत्मीनान दिला कि जैसे वो पिछले ज़मींदार के राहत थे वैसे ही चौधरी के रहेंगे। उनको बिल्कुल तंग नहीं किया जाएगा, आराम से काश्त करते रहें। उसने अपनी तजवीज़ की किसी कदर वजाहत की। ठीक से कोशिश की जाए तो उनको अपने साथ मिलाया जा सकता है। दूसरे राहक तो इंतकालात मंसूख होने की वजह से सख्त नाराज़ होंगे। वो तो झगड़ा डालेंगे। उनके बारे में आगे सोचा जाएगा कि किस तौर निपटा जाए। सिंह सरदार, वो सब एक हैं। अजीज़ कठवाल ने मुदाखलत की। उनका आपस में बहुत संगत और इत्तेहाद है। सबसे पहले इसी संगत को तोड़ना होगा, तभी तो काम बनेगा। अज़मतुल्लाह दरेशक ने गठवाल से कहा, ये बहुत ज़रूरी है। वो गौस बख्श लाशारी की जानिब मुतवज्जे हुआ। गौस, तू ये कोशिश कर कि उनमें किसी न किसी तरह फूट पड़ जाए। उसने सरदार मज़ारी की तरफ मुस्कुरा कर दाद तलब नज़रों से देखा। शाहज़ोर, ऐसा करना ठीक रहेगा? तूने भी बिल्कुल ठीक सोचा। शाहज़ोर मज़ारी ने उसकी तजवीज़ से पूरा पूरा इत्तिफाक किया। 8 राहक टूट कर अपने साथ आ गए तो दूसरे कमज़ोर पड़ जाएंगे। गौस बख्श लाशारी ने भी सरदार दरेशक की तायीद की। सही सरदार, जैसा तूने सोचा है वैसा ही करना होगा, पर तू खुद दिलावर वाला ना जाना। अजीज़ कठवाल ने गौस बख्श को खबरदार किया। ये तू मुझ पर छोड़ दे, आगे क्या करना है। गौस बख्श लाशारी ने अजीज़ कठवाल की तनबीह को अहमियत ना दी। गौस, अब तू जा। सरदार दरेशक ने तहकमाना अंदाज में कहा, जैसा मैंने कहा है तूने वैसा ही करना है। गौस बख्श लाशारी ने सरदार अज़मतुल्लाह दरेशक को यकीन दिलाया कि वो उसकी हिदायत पर अमल करेगा और इस सिलसिले में जो कोशिश करेगा उससे जल्द ही मुतल्ला करेगा। गौस बख्श लाशारी खिलाफ तवक्को शाम को न आया। दूसरे रोज़ सहपहर को आया। सरदार दरेशक उसका इंतज़ार कर रहा था। उसके साथ शाहज़ोर मज़ारी और रहीम दाद भी बैठे थे। अजीज़ कठवाल भी मौजूद था। वो तीनों से ज़रा हट कर गर्दन झुकाए अदब से बैठा था। सरदार दरेशक ने गौर किया कि गौस बख्श लाशारी का चेहरा उतरा हुआ है। वो निठाल और थका हुआ नज़र आ रहा था। उसने चुभती हुई निगाहों से गौस बख्श की जानिब देखा। दरियाफ्त किया, गौस, तू परेशान परेशान नज़र आ रहा है, लगता है काम बना नहीं। हाँ सईं, मामला बहुत उलझा हुआ है, आसानी से काम नहीं बनेगा। गौस बख्श ने बुझे हुए लहजे में मुतल्ला किया। तू राहकों से मिला था, क्या कहते थे वो? सही सरदार, वो तो बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं। गौस बख्श लाशारी ने अज़मतुल्लाह दरेशक को बताया। मैंने उनको बहुत समझाया, इत्मीनान भी दिलाया, पर वो किसी तरह राज़ी नहीं हुए। मुझे पहले ही मालूम था कि वो किसी तरह राज़ी बाजी नहीं होंगे। अजीज़ कठवाल ने अपनी नाकामी के बारे में सफाई पेश करने की कोशिश की। मैं भी उनसे मिला था, हर तरह समझाया बुझाया। उसने मुड़कर शाहज़ोर मज़ारी की जानिब देखा। सही सरदार, तुझे पता है मैंने तुझे और चौधरी को यही बताया था ना? तू चुप कर। अज़मतुल्लाह दरेशक ने गुस्से से गठवाल को डांटा। दरेशक को उसकी मुदाखलत निहायत शाक गुजरी। उसने गौस बख्श को मुखातिब किया। गौस, तू बता, क्या कहते थे वो? सईं, तेरी हिदायत को सामने रखते हुए मैं सबसे पहले 8 राहकों के वटों और वडेरों से मिला, आराम से उनको समझाया, पर वो अपनी ही कहते रहे।
मेरी किसी गाल को मानने और समझने को तैयार ही ना हुए। वो इस तरह क्यों अड़े हुए हैं? अज़मतुल्लाह दरेशक ने गौस बख्श लाशारी से सवाल किया। उनकी तो सही दलील ही निराली है। क्या दलील है उनकी? मैं भी तो सुनूं। सरदार दरेशक ने गौस बख्श लाशारी से सवाल किया। उसके लहजे में हैरत के साथ साथ तजस्सुस भी था। सही, मैं उनके एक नुमाइंदे को अपने साथ लाया हूँ। गौस बख्श ने मुतल्ला किया। वो तुझे अपनी दलील खुद ही बताएगा। किधर है वो? दरेशक ने चौंक कर पूछा। हवेली के बाहर बैठा है, गौस बख्श लाशारी ने बताया। तेरी इजाज़त हो तो मैं उसे बुला लूँ? ज़रूर बुला। दरेशक ने इजाज़त दे दी। उसे पेश कर। तूने ये ठीक किया कि उसे अपने साथ ही ले आया। उससे साफ साफ गाल होगी। गौस बख्श लाशारी फ़ौरन हवेली से बाहर गया। वापस आया तो एक उथेड़ मज़ारा उसके हमराह था। वो लाशारी के पीछे पीछे चल रहा था। उसका जिस्म दुबला पतला था, मगर मजबूत और गठा हुआ। कद निकलता हुआ था, गर्दन कदरे झुकी हुई थी। सर पर मलकजी पगड़ी थी, बाल खिचड़ी थे, लिबास भी मैला और बोसीदा था। वो बार बार पगड़ी के शमले से चेहरे पर आया हुआ पसीना पोंछ रहा था। बदन से भी पसीने की तेज बू उठ रही थी। अज़मतुल्लाह दरेशक के रूबरू पहुँचते ही उसने हस्बे दस्तूर दुआया कलमात अदा किए। सही सरदार, सुखी सेहत होवी, बाली बच्ची, यारी दोस्ती, सबको खैर सलाह होवी, माल जान माल ढगी को खैर होवी, रब राजी होवी। अज़मतुल्लाह ने पूछा, तेरा नाम क्या है? नसीर बोहड़। उसने मुख्तसर जवाब दिया। राहकों ने तुझे अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा है? ना सही। उसने इनकार में गर्दन हिलाई। मुझे किसी ने नुमाइंदा शुमाइंदा नहीं बनाया, न मुझे किसी ने भेजा। उसने मुड़कर गौस बख्श लाशारी की जानिब देखा। सही ने बुलाया तो मैं चला आया। तू इसे जानता है? अज़मत ने रहीम दाद की जानिब इशारा किया। ये तेरा ज़मींदार चौधरी नूर इलाही है। आगे तूने इसे राखी या बिटाई देनी होगी। अपना ज़मींदार मानना होगा, पूरी पूरी इज्जत देनी होगी। नसीर बोहड़ ने नज़रें उठाकर रहीम दाद को देखा, मगर खामोश खड़ा रहा। उसने किसी रद्द अमल का इज़हार ना किया। उसका सुकड़ा हुआ चेहरा चिलचिलाती धूप से झुलसा हुआ था, जिस पर उस वक्त गहरी संजीदगी छाई थी। तूने मेरी गाल का जवाब नहीं दिया? सरदार दरेशक ने कदरे बुलंद आवाज से पूछा। सही सरदार, तेरे कारदार ने मुझे इसके बारे में बताया था। उसने एक बार फिर रहीम दाद की जानिब देखा। पहले देखा नहीं था, अब देख लिया। ये मेरी गाल का जवाब नहीं है। अज़मतुल्लाह दरेशक का लहजा तीखा था। सही सरदार, मैंने जो जवाब देना है तेरे कारदार को पता है। उसने मुड़कर गौस बख्श लाशारी पर नज़र डाली। इसने तुझे सब कुछ बता ही दिया होगा, मैंने अब क्या कहना। ये कहता था तू चौधरी को अपना ज़मींदार मानने को तैयार नहीं। सही, मैं मानने ना मानने वाला कौन होता हूँ? मैं अकेला तो नहीं हूँ। उसने निहायत एतमाद से जवाब दिया। और भी कई बंदे हैं। वो चौधरी को ज़मींदार और अपने तई राहक मानने के बारे में क्या कहते हैं? दरेशक ने इस्तफसार किया। सही, पहले वो राहक या मज़ारे होते थे, अब नहीं रहे। ज़मींदार बन गए हैं वो? सरदार दरेशक के होंठों पर जहरखंड था। अब नहीं बने, पिछले कई साल से ज़मींदार हैं। नसीर बोहड़ ने बिला झिझक जवाब दिया। कैसे बन गए ज़मींदार? किसने उनको ज़मींदार बनाया? सरदार दरेशक के लहजे में इस्तजाब था। शहज़ोर मज़ारी और रहीम दाद के चेहरों से भी हैरत झलक रही थी। वो नज़रें उठाए नसीर बोहड़ को देख रहे थे,
जो निहायत सकून से उनके रूबरू खड़ा था। सही सरदार, तूने ठीक तरह पता है, जब पाकिस्तान बनने जा रहा था तब मुस्लिम लीगी लीडर हर तरफ घूमते फिरते थे, जलसे करते थे, जलूस निकालते थे। तुझे याद है ना? नसीर बोहर ने सरदार दरेशक की आंखों में आंखें डालकर देखा। मुझे याद है, बिल्कुल याद है, सरदार अज़मतुल्लाह दरेशक ने एतराफ़ किया। उसका लहजा तल्ख हो गया, त्योरी पर बल पड़ गए। साफ साफ गाल कर, तू कहना क्या चाहता है? सही, उन्होंने चीख चीख कर और बार बार कहा था, मुस्लिम लीग के लिए इलेक्शन में पर्ची डालो ताकि पाकिस्तान बन जाए, और जब पाकिस्तान बन जाएगा तो ज़मीन वड्डे ज़मींदारों और जागीरदारों से छीन कर किसानों और राहकों को दे दी जाएगी। जिस ज़मीन पर हल चलाते हैं वो उनकी हो जाएगी। वो मज़ारे और राहक नहीं रहेंगे, ज़मींदार बन जाएंगे। नसीर बहुत संभल संभल कर बोल रहा था। तभी तो सही, सारे राहकों ने मुस्लिम लीग के लिए बक्सों में पर्चियां डालीं और पाकिस्तान बन गया, और तुमने ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया और ज़मींदार बन गए। सरदार दरेशक ने तंजिया लहजे में कहा। मुड़कर सरदार मज़ारी की जानिब देखा। शाहज़ोर, तू इसकी गाल सुन रहा है? शाहज़ोर मज़ारी तो खामोश रहा, मगर नसीर बहुत खामोश ना रहा। उसने निहायत इत्मीनान से सरदार अज़मतुल्लाह दरेशक से कहा, सही सरदार, हमने किसी की ज़मीन नहीं छीनी। जो ज़मीन मेरे पास है उस पर मैं राहक के तौर पर बरसों हल चलाता रहा। मेरा प्यू भी चलाता रहा, उसका प्यू भी चलाता रहा। ये ज़मीन पहले एक हिंदू ज़मींदार की होती थी। वो बहुत बड़ा ज़मींदार था, उसके पास हज़ारों किल्ला ज़मीन होती थी। पाकिस्तान बना तो वो भाग कर हिंदुस्तान चला गया। उसकी ज़मीन का कोई मालिक ना रहा। जब कोई मालिक ना रहा तो तुमने उसकी ज़मीन दबा ली और ज़मींदार बन गए। सरदार अज़मतुल्लाह दरेशक ने नसीर बोहड़ को चुभती हुई नज़रों से देखा। तुम सब ने ये नहीं सोचा ऐसे भला कोई ज़मींदार बन सकता है? कानून भी आखिर कोई चीज़ होती है। लूट तो नहीं लगी है कि जिसका जी चाहा ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया और राहक से मालिक बन बैठा। सही, ये अकेले मेरे सोचने की गाल नहीं, सब इसी तरह सोचते हैं। उसने साफ गोई से काम लिया। न वो किसी और को ज़मींदार मानने को राज़ी हैं, न राहकी या पिटाई देने को। उसने रहीमदाद की जानिब देखा। चौधरी से पहले भी कई मुहाजिरों ने इस ज़मीन की अलॉटमेंट ली, पर कब्ज़ा किसी को ना मिला। बहुत झगड़ा डाला पर हाथ कुछ ना आया। जहाँ से आए थे वहीं चले गए। इस दफ़ा उसने बराह रास्त रहीमदाद को मुखातिब किया। सही चौधरी, तुम वड्डा ज़मींदार है, सुना है तेरे पास पहले भी बहुत ज़मीन है। उसके लहजे में इल्तिजा थी। तुझे पता नहीं, हम सब गरीबी हलीमी में किसी ना किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। तू हमको क्यों तंग करना चाहता है? चौधरी किसी को तंग करना नहीं चाहता। दरेशक ने रहीमदाद की वकालत की। चौधरी तो सिर्फ इतना चाहता है कि तुम पहले की तरह मेहनत करो, फसल पैदा करो, अपनी राखी लो, बिटाई में ज़मींदार के तौर पर उसका जो हिस्सा बनता है उसे दो। सही सरदार, बुरा ना मनाना। उसने दोनों हाथ जोड़कर आजिज़ी का मुजाहिरा किया। सही, तू जो कुछ चाहता है वो नहीं होगा, कोई इसे नहीं मानेगा। सरदार अज़मतुल्लाह दरेशक का चेहरा तमतमाने लगा। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, बेजारी से बोला, नसीरे, मैंने तेरी बकवास और नहीं सुननी, अब तू जा। उसका लहजा अचानक तुरुष्ट हो गया। अपने यारों और संगीतों से कह देना, चौधरी दूसरे मुहाजिरों की तरह इधर अकेला नहीं है। वो सरदार शाहज़ोर खान मज़ारी का यार है और मेरा भी। उसने गुस्से से फड़फड़ाती हुई अपनी घनी मूंछों पर हाथ फेरा।
आगे के लिए वो ठीक तरह सोच रखें, ज़मींदारी का खनास अपने दिमाग से निकाल दें। ये सीधी साधी धमकी थी। नसीर बहर ना उसके गुस्से से मरूब हुआ, ना धमकी से। उसने गर्दन उठाकर सरदार अज़मतुल्लाह दरेशक की जानिब देखा और इत्मीनान बख्श लहजे में गोया हुआ, सही सरदार, फ़ी अमान अल्लाह। वो मुड़ा और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ चला गया। सरदार अज़मतुल्लाह दरेशक की त्योरी पर बल पड़े थे। आंखों से झुंझुलाहट और कदूरत झलक रही थी। कमरे में गहरा सकूत तारी था। हर शख्स खामोश था और झुंझुलाया हुआ नजर आता था। नसीर बहड़ की साफ और खरी बातों ने उनके जहनों में खलबली बर्पा कर दी थी। कुछ देर बाद शाहज़ोर मज़ारी की आवाज़ उभरी। उसने गौस बख्श लाशारी को मुखातिब किया। नसीर की बातों से पता चलता है वो राहक जिनके इंतकालात मनसूख हो गए हैं ज़्यादा ही रोला डालेंगे। उनके बारे में तूने क्या पता लगाया? सही, वो तो मामले को अदालत में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपना एक वकील भी खड़ा कर दिया है, गौस बख्श लाशारी ने बताया। सुना है सदर दफ्तर के हुक्म के खिलाफ वो अपील दायर करने वाले हैं। अभी इन्होंने अपील दायर तो नहीं की? मज़ारी ने बेचैन होकर पूछा। जहाँ तक मुझे पता है अभी तक नहीं की, गौस बख्श ने जवाब दिया। तब तो आगे की पेशबंदी के लिए फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई करनी होगी। मज़ारी ने दरेशक को अपनी जानिब मुतवज्जे किया। अज़मत, तेरा क्या ख्याल है? जैसी तेरी मर्जी, उसने बेनियाजी से कहा। वैसे मैं तुझे ये बता दूं कि ये झगड़ा कानूनी कार्रवाइयों से तय होने का नहीं, इसे तो ज़ोर आजमाई से तय करना होगा। मुझे भी पता है, होगा तो ऐसे ही, पर कानूनी तौर पर भी अपनी पोजीशन ज़्यादा मजबूत करनी होगी। मेरे वकील ने भी यही मशवरा दिया है, शाहज़ोर मज़ारी ने अज़मतुल्लाह दरेशक को बताया। ऐसा करते हैं, वकील को इधर ही बुला लेते हैं। इधर बुलाने की क्या ज़रूरत है? दरेशक ने उसकी राय से इत्तेफाक नहीं किया। दरख्वास्तें तो राजनपुर ही में लगानी होंगी, वकील भी वहीं मिलेगा। फौरी कार्रवाई करनी है तो कल ही राजनपुर पहुंच जाना चाहिए। सरदार शाहज़ोर मज़ारी ने उसकी तजवीज़ कबूल कर ली। रहीम ताद ने भी तायीद की। सरदार शाहज़ोर मज़ारी और सरदार अज़मतुल्लाह दरेशक के हमराह रहीम ताद, अज़ीज़ गठवाल और गौस बख्श लाशारी राजनपुर पहुँचे। राशिद अहमद अंसारी वकील से मिले। उसने ज़रूरी दस्तावेज़ात तैयार कर ली थीं। उनमें अज़ीज़ गठवाल के नाम रहीम ताद का मुख्तारनामा था। दफ़ा 145 के तहत मज़ारों के ख़िलाफ़ चाराजोई की दरख्वास्त थी और दूसरी राय बहादुर हत्योराम की हवेली के अलॉटमेंट के लिए थी। रहीम दाद ने मुख्तारनामे और दोनों दरख्वास्तों पर दस्तखत कर दिए तो वकील ने मशवरा दिया, अभी ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल नहीं हुई। वो कैसे मुकम्मल करनी होगी? सरदार अज़मतुल्लाह ख़ान दरेशक ने वकील से दरियाफ्त किया। दरेशक साहब, पहले मुकदमे की नौइयत समझ ली जाए तो बेहतर है। वकील ने अज़मतुल्लाह दरेशक से कहा। इस हकीकत से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि सभी राहक या मज़ारे छप्पर बंद हैं, यानी उनका हक़ मज़ारियात क़दीम से चला आ रहा है। बाद में जब हिंदू ज़मींदार चला गया तो वो मज़ारे ख़ुद काश्तकार बन गए और 10 ने तो मालिकाना हकूक़ भी हासिल कर लिए। मगर जब ज़मीन को मतरूका अराज़ी डिक्लेयर कर दिया गया और चौधरी के नाम इसकी अलाटमेंट हो गई
تو مزاروں کی نوعیت بدل گئی۔ سردار دریشک نے وکیل پر اپنی قانونی مہارت کا سکہ جمانے کی کوشش کی۔ جی نہیں، وکیل نے وضاحت کی، آپ ایک قانونی نقطہ نظر انداز کر گئے، اور وہ یہ ہے کہ 10 مزاروں کی نوعیت اس وقت تبدیل ہوئی جب رجسٹر خسرہ گرداوری میں ان کے انتقالات منسوخ ہو گئے اور چودھری صاحب کے نام منتقل ہو گئے۔ صحیح، تو نے ٹھیک بتایا۔ سردار دریشک نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ اب تو سوچنا یہ ہے کہ آگے ضابطے کی کارروائی کیا کرنی ہے۔ اب تو انہیں مزارہ تابع مرضی مالک بنانا ہے، وکیل نے مطلع کیا۔ اور صحیح، وہ اس کے لیے بالکل تیار نہیں۔ اس بار شاہ زور مزاری نے لقمہ دیا۔ کل ان کا ایک بندہ آیا تھا، وہ تو بہت اونچی اونچی باتیں کرتا تھا۔ کرنا بھی چاہیے، وکیل مسکرا کر بولا۔ گزشتہ 9-10 سال سے وہ زمین پر قابض ہیں، آسانی سے تو دستبردار نہیں ہوں گے۔ اپنا قبضہ جائز ثابت کرنے کے لیے پوری کوشش کریں گے۔ ایسا تو وہ کر ہی رہے ہیں۔ اس بار بھی شاہ زور مزاری بولا۔ ضابطہ فوجداری کے تحت جو کارروائی کی جائے گی اس کا طریقہ تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں، بلکہ اس کے لیے درخواست بھی تیار کی جا چکی ہے۔ چودھری صاحب نے اس پر دستخط بھی کر دیے۔ اب تو اسے ضروری کارروائی کے لیے آگے بڑھانا ہے۔ وکیل نے وضاحت سے اپنا موقف بیان کیا، مگر اس کے ساتھ ہی ٹیننسی ایکٹ کے تحت تحصیلدار کو اس مضمون کی درخواست بھی دینی ہوگی کہ مزاریں بٹائی دینے سے انکاری ہیں۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ اپنا مقدمہ مضبوط بنانے کے لیے ان کے خلاف دوسرے ایسے الزامات بھی عائد کرنے ہوں گے جو ٹیننسی ایکٹ کے تحت ضروری ہیں، مثلاً یہ کہ مزارے کاشت کی طرف پوری توجہ نہیں دے رہے ہیں، جس کے باعث پیداوار گھٹ رہی ہے، زمین خراب ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے شاہ زور مزاری اور عظمت اللہ دریشک کو نظر بھر کر دیکھا۔ آپ دونوں تو خاندانی زمیندار ہیں، آپ کو تو بخوبی علم ہوگا کہ مزاروں کے بے دخل کرنے کے لیے کس کس طرح کی دیوانی اور فوجداری کارروائی کی جاتی ہے۔ صحیح، ایسا ہے تو ضابطے کی کارروائی پوری کرنے کے لیے دوسری درخواست بھی تیار کر لی جائے، شاہ زور مزاری نے کہا۔ اس پر چودھری سے دستخط لگوا لے اور درخواست تحصیلدار کے سامنے پیش کر دے۔ پر یہ ساری کارروائی آج ہی پوری ہو جانی چاہیے، سردار دریشک نے تاکید سے کہا۔ آج ہی پوری ہو جائے گی، میں درخواست تیار کر کے چودھری صاحب سے دستخط کروا لوں گا اور تحصیلدار کے سامنے پیش کر دوں گا۔ وکیل نے دریشک کو باور کرایا۔ اس نے کیا بھی ایسا ہی، گھنٹہ بھر کے اندر اندر درخواست تیار کی اور رحیم داد سے اس پر دستخط بھی کرا لیے۔ ایک درخواست تحصیلدار کے دفتر میں پیش کر دی گئی، دوسری تعزیرات پاکستان کی دفعہ 145 کے تحت قانونی چارہ جوئی کے لیے تھانے میں تحصیلدار اور تھانے دار دونوں ہی سردار شاہ زور مزاری اور عظمت اللہ دریشک کے نہ صرف جاننے والے تھے بلکہ بے تکلف دوست بھی تھے، لہٰذا دونوں درخواستوں پر فوری کارروائی کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ راجن پور سے کوٹ اکبر واپس پہنچ گئے۔ دلاور والا کی زمین پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے رحیم داد سے زیادہ سردار شاہ زور مزاری فکر مند تھا، اور سردار عظمت اللہ خان دریشک کو شاہ زور مزاری سے بھی زیادہ تشویش تھی۔ نصیر بہٹ سے بات چیت کرنے کے بعد یہ اس کے وقار کا مسئلہ بن گیا تھا۔ دن ہو یا رات، جس وقت بھی تینوں یکجا ہوتے، دلاور والا کی زمین کا ذکر ضرور ہوتا، اور ایک بار جب یہ ذکر چھڑ جاتا تو گھنٹوں جاری رہتا۔ رحیم داد کی درخواست پر تحصیلدار نے ہنوز کوئی فیصلہ نہیں دیا تھا، اسے ضابطے کی کارروائی پوری کرنے کے لیے وقت درکار تھا، حالانکہ درپردہ وہ شاہ زور مزاری
اور عظمت اللہ تریشک کو یقین دلا چکا تھا کہ فیصلہ رحیم داد ہی کے حق میں ہوگا، لیکن سردار تریشک تحصیلدار کے فیصلے اور پولیس کی کارروائی سے پہلے اپنے طور پر کارروائی کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ ایک شام اس نے کھل کر اس کا اظہار بھی کیا۔ اس وقت شاہزور مزاری اور رحیم داد کے علاوہ اس کا کاردار غوث بخش لاشاری بھی موجود تھا۔ عزیز گٹھوال مقدمے کی پیروی کے سلسلے میں راجن پور میں مقیم تھا۔ سردار عظمت اللہ تریشک نے شاہزور مزاری کو مخاطب کیا، شاہزور، پتہ نہیں تحصیلدار کب فیصلہ سنائے گا، ہم نے کب تک اس کا انتظار کرنا ہوگا؟ ابھی تو بیانات لیے جائیں گے، گواہ پیش ہوں گے، ثبوت مہیا کیے جائیں گے۔ تحصیلدار کو عدالتی کارروائی تو پوری کرنی ہی ہوگی۔ شاہزور مزاری نے اپنے رائے کا اظہار کیا۔ اس کے فیصلے سے پہلے کیا ہی کیا جا سکتا ہے؟ سردار عظمت اللہ تریشک اپنی بات پر اڑا رہا، رہاکوں کو بے دخل ہی تو کرنا ہے۔ اس نے اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرا، میرے یا تیرے لیے یہ کوئی نئی یا انوکھی گال نہیں، پہلے بھی کتنوں ہی کو بے دخل کیا ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ تو نے بالکل ٹھیک کہا، سردار مزاری نے اس کی تائید کی۔ پر یہ تو سوچ، ایک بار جب تحصیلدار کے سامنے بے دخلی کی درخواست لگا دی گئی تو فیصلے تک تو چپ کر کے بیٹھنا ہی پڑے گا۔ تو میری گال کا مطلب نہیں سمجھ سکا، تو سمجھائے گا تبھی تو سمجھوں گا۔ سردار مزاری نے مسکرا کر تریشک سے کہا، مجھے کیا پتا تو نے کیا سوچ رکھا ہے اور تو کیا کرنا چاہتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے کچھ مسلح کراوے اور زور آور بندے دلاور والا بھیجوں، وہ چودھری کی طرف سے راہکوں کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کریں، توڑ پھوڑ کریں، جو کوئی آکڑ دکھائے، دنگا فساد کرے، اس کی پٹائی کریں۔ اس طرح تو اپنا مقدمہ کمزور پڑ جائے گا۔ رحیم داد نے مداخلت کی، کمزور نہیں اور مضبوط ہو سکتا ہے۔ تریشک نے ہنس کر کہا، راہک ڈر جائیں گے، مقدمے بازی چھوڑ کر صلح صفائی کرنے کی کوشش کریں گے، منت کریں گے، زاری کریں گے۔ مان لے وہ ڈرانے دھمکانے میں نہ آئے، تب کیا ہوگا؟ رحیم داد اپنی بات پر جما رہا، ہوگا کیا؟ وہ تھانے میں پرچہ چاک کرانے کی کوشش کریں گے۔ تریشک نے رحیم داد کو باور کرایا، تو اطمینان رکھ، ان کی رپورٹ درج نہیں ہوگی، بلکہ تیری نہ صرف درج ہو جائے گی، اس پر فٹافٹ کارروائی بھی شروع ہو جائے گی۔ تجھے تو پتہ ہی ہے کہ تھانے دار اپنا بندہ ہے، گہرا یار ہے۔ رحیم داد خاموش رہا۔ سردار شاہزور مزاری نے بھی عظمت اللہ تریشک کے ساتھ مزید حجت کرنے سے گریز کیا۔ یہ اس کا علاقہ نہ تھا، تریشک کا تھا۔ رحیم داد کو زمین کا قبضہ دلانے کے لیے اسے عظمت اللہ تریشک کی مدد درکار تھی، لہٰذا اس کی مرضی اور منشا کو اہمیت دینا ضروری تھا۔ اسی مقدمے کے تحت وہ رحیم داد کے ساتھ کوٹ اکبر آیا تھا۔ سردار عظمت اللہ تریشک نے اپنے کارندوں اور نوجوان مزاروں کو اکٹھا کیا اور ضروری ہدایت دے کر ایک مضبوط اور قوی ہیکل کمدار کی سربراہی میں انہیں دلاور والا کی جانب روانہ کیا اور سردار شاہزور مزاری اور رحیم داد کے ساتھ بیٹھ کر بے چینی سے ان کا انتظار کرنے لگا۔ وہ واپس آئے مگر ان کی حالت دگرگوں تھی، چہروں کی رنگت اڑی اڑی تھی، لباس بے ترتیب اور گرد سے اٹے ہوئے تھے، وہ نٹھال اور درماندہ نظر آتے تھے، گھبراہٹ اور پریشانی ان کی آنکھوں سے جھلکتی تھی۔
सरदार अज़मतुल्लाह ने उनकी ये अबतरी और खस्ता हाली देखी तो ख़ुद भी तशवीश में मुब्तला हो गया। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि पूरी बस्ती 18 मज़ारों की हिमायत में सीना सपर हो गई। सभी बोहड़ थे, तादाद में भी बहुत ज़्यादा थे और मुसल्ला भी थे। वो हर तरफ से शोर मचाते हुए निकले और इस तरह यलगार की कि सरदार तेरे शक के आदमी उनके नरगे में फंस गए। जान बचाना मुश्किल हो गई। किसी न किसी तरह गुल्फ खुलासी हासिल की। इस तरह पसपा हुए कि नज़रें हज़ीमत और घबराहट से झुकी हुई थीं और बोहड़ों के सर ऊंचे थे और गर्दनें तनी हुई थीं। सरदार दरेशक ने चाहा था कि खौफ व हिरास फैलाकर मज़ारों को झुकने पर मजबूर कर दिया जाए, मगर उसका सारा मंसूबा खाक में मिल गया। वो सख्त चिराग पा हुआ, चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ गया, आँखों से चिंगारियाँ उड़ने लगीं। उसने ग़ैज़ो ग़ज़ब के आलम में न सिर्फ अपने कमदार और कारिंदों को बल्कि सभी को गालियाँ दीं। देर तक चीखता चिल्लाता रहा, ठाड़ता रहा, फिर धुतकार कर सबको कमरे से निकाल दिया। उसकी आन बान और इज़्ज़त व वक़ार को सख्त ठेस पहुँची थी। अब वो और भड़क उठा था, अंदर ही अंदर सुलग रहा था। उसने राहकों यानी मज़ारों की सरकशी और शोरिश कुचलने के लिए दूसरे हरबे और हथकंडे आजमाने का तहैया किया, जो सरदारों और बड़े ज़मींदारों का आम वतेरा है। उसने इलाके के थानेदार को बुलाया। उसका नाम अब्दुल गनी खान नियाज़ी था। तनोतोश के एतबार से बड़ा दबंग नज़र आता था। उसकी सख्त दिली और मिजाज की बरहमी का दूर दूर तक शोहरा था। जब वो आया तो सरदार शाहज़ोर मज़ारी और रहीम दाद भी मौजूद थे। सरदार दरेशक ने थानेदार को ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया। बोहड़ों के ख़िलाफ़ अपनी शदीद नफ़रत और कदूरत का इज़हार किया। मसले के हर पहलू का तफसीली जायज़ा लिया गया। आखिर बाहिमी सुलह मशवरे से ये तय पाया कि उन बोहड़ों के ख़िलाफ़ मवेशियों की चोरी और ऐसे ही दूसरे इल्ज़ामात की बुनियाद पर झूठे मुकदमे कायम किए जाएं, जो सरकशी और महाज आराई में पेश हैं। उनको गिरफ़्तार किया जाए और हवालात में बंद करके इस तरह ज़दोकोब किया जाए कि न सिर्फ उनका सारा तनतना और कसबल निकल जाए, बल्कि दूसरे बोहड़ भी इबरत हासिल करें। दहशत ज़दा होकर सरदार दरेशक के पैरों पर अपने सरों की पगड़ियाँ डाल दें। थाने वापस जाकर अब्दुल गनी खान नियाज़ी ने बोहड़ों के ख़िलाफ़ मुकदमात कायम किए और उनकी गिरफ़्तारी के लिए पूरी तैयारी भी कर ली, मगर दिलावर वाला जाने से कबल वो कोटक पर पहुंचा। पुलिस की एक जमात उसके साथ थी। उधर सरदार अज़मतुल्लाह दरेशक की हवेली के सामने खुले मैदान में उसके कारिंदे, तगड़े और मजबूत मज़ारे और कमी सूरज ग़रूब होते ही इकट्ठा शुरू होने लगे थे। उनकी तादाद में बराबर इजाफा हो रहा था। पहर रात गुजरी तो मैदान में हर तरफ चहल पहल और घुमा घुमी थी। मिली जुली आवाज़ों का शोर था। उनके लिए खाने के अलावा ख़ास तौर पर भंग घूंट कर तैयार की गई थी। वो भंग के ग्लास पर ग्लास चढ़ा रहे थे, बहक रहे थे, कहकहे लगा रहे थे। पुलिस वाले भी शरीक होकर उनके रंग में रंगते जा रहे थे। हर तरफ हंगामा हाउ हू बरपा था। एक नौजवान ने नशे में झूमकर दोहड़ा छेड़ा, कान पर एक हाथ रख कर तान लगाई। उसकी आवाज़ पाटदार और सुरीली थी। दूसरे भी नशे की तरंग में उसकी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर कोरस के अंदाज में दोहड़े के बोल अलापने लगे। उनकी आवाज़ें ऊंची और ऊंची होती गईं। वो झूम रहे थे, लहरा रहे थे, रात जागी रही थी, फिज़ा गुनगुना रही थी, बोल रही थी, बता रही थी। मेरे रोई रोई में लहर दौड़ जाए, ज़ख्मी रूह जिंदा हो जाए, अगर एक बार भी अपने महबूब को देख ले। हवेली के वसी सहन में सरदार दरेशक, सरदार मज़ारी, थानेदार अब्दुल गनी नियाज़ी और रहीम दाद कुर्सियों पर बैठे थे। शराब से शुगल कर रहे थे, हंस रहे थे, हंसा रहे थे, बातें कर रहे थे। रात जाग रही थी
وہ بھی जाग रहे थे। रात आहिस्ता आहिस्ता अपना सफ़र तय करती रही। सुनसान और तारीख होती गई। रात आधी हो गई। थानेदार ने घड़ी देखी और उठकर खड़ा हो गया। हवेली से बाहर आया। सरदार तरेशक, सरदार मज़ारी और रहीमदाद उसके हमराह थे। थानेदार ने मुस्कुराकर सरदार अज़मतुल्लाह को मुखातिब किया। सरदार, फ़िक्र ना कर, सुबह सारे बदमाश और सरकश भोड़ों को बांध कर तेरे सामने पेश करूँगा। उसने एक हाथ उठाकर मूँछों पर ताव दिया, नखुवत से गर्दन को अकड़ाया। सरदार तरेशक ने हंसकर कहा, मुझे पता है तू कामयाब लौटेगा। पहले भी कब नाकाम हुआ है, हर मुआर का सर किया है। थानेदार ने नशे की तरंग में कह कहा लगाया। सरदार तरेशक और सरदार शाहजोर मज़ारी से रुखसत हुआ। आगे बढ़ा। रहीमदाद और गौस बख्श लाशारी भी उसके साथ साथ चले। तीनों एक जीप में बैठ गए। कुछ पुलिस वाले भी उनके साथ बैठ गए। एक जीप और भी थी। पुलिस के बकिया सिपाही उसमें बैठ गए। सरदार तरेशक के कारिंदे और गुर्गे घोड़ों और ऊँटों पर सवार हो गए। दोनों जीपें आगे आगे थीं। उनके अकब में घोड़े और ऊँट थे। थानेदार की कमर पर लटकते हुए हॉलिस्टर में भरा हुआ पिस्तौल था। रहीमदाद और गौस बख्श लाशारी के पास 12 बोर की 2 नाली बंदूकें थीं। 2 कांस्टेबल भी पुरानी वज़ा की राइफलों से मुसल्ला थे। सरदार तरेशक के कारिंदों और गुर्गों के हाथों में कुल्हाड़ियाँ और ऊंची ऊंची डांगें थीं। हर डांग पर तेज़ धार की चमकीली छुई चढ़ी हुई थी। वो कच्चे और नाहमवार रास्तों पर धूल के बादल उड़ाते दिलावर वाला की सिमत जा रहे थे। थानेदार अब्दुल गनी खां ने यह मंसूबा बनाया था कि अंधेरे में निहायत खामोशी से बस्ती का मुहासरा कर लिया जाए और रात के पिछले पहर इस तरह अचानक घरों पर छापा मारा जाए कि सब बेखबर सोते हों, किसी मुलजिम को फरार होने का मौका ना मिले, सबको आसानी से हिरासत में ले लिया जाए। बोहड़ों को पुलिस के छापे की सुनगुन मिल गई थी। वो न सिर्फ चौकस और चौकन्ना थे, बल्कि पुलिस और उसके मददगारों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। गांव के इर्द गिर्द झंगर दर घटी झाड़ियाँ थीं, जिनके दरमियान कहीं कहीं टीले और टिब्बे थे। बोहड़ों ने टीलों पर मोर्चे लगा रखे थे। उनके पास कुल्हाड़ियाँ और डांगें थीं, पत्थरों की ढेरियाँ थीं। गोपन और 2 सांघियाँ थीं जो फसलों और बागों से परिंदों को भगाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, मगर उस वक्त वो उनसे एक मौसर हथियार का काम लेना चाहते थे। 2 सांघियों या गुलैलों के ज़रिए दूर निशाने पर ताक कर मारने के लिए उन्होंने मिट्टी की गोलियां तैयार की थीं, जिनको कुम्हार ने भट्टी में पकाकर पुख्ता और मजबूत बना दिया था। औरतें और बच्चे मकानों की छतों पर बैठे थे। उन्होंने भी छोटे बड़े पत्थरों की ढेरियां जगह जगह बना रखी थीं। माजूर और बीमारों को छोड़कर बस्ती के तमाम बूढ़े भी मुस्तैद और सरगर्म नजर आ रहे थे। वो घरों के दरवाज़ों पर बैठे हुक्के के कश लगा रहे थे, खांस रहे थे, खंका रहे थे, बातें कर रहे थे। सब ही चौकन्ना और चौकस थे, जाग रहे थे और उन तरह तरह की जिम्मेदारियों से पूरी तरह बाखबर थे जो ख़तरे के वक्त उनको अंजाम देना थीं। रात ढलती जा रही थी। आसमान पर सितारों के कंवल जगमगा रहे थे। हवा सरसराती हुई दरख्तों से गुजर रही थी। सब चौकन्ना नज़रों से बार बार गर्दनें उठाकर उन रास्तों को देख रहे थे जो मुख्तलिफ सिमतों से गांव की तरफ आते थे। यकायक दूर शुमाल में तेज़ रोशनी उभरी जो रफ्ता रफ्ता करीब आती जा रही थी।
اس کے ساتھ ساتھ آہٹیں اور آوازیں بھی ابھرنے لگیں۔ بستی پر فوراً گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ عورتیں چھتوں کی منڈیروں کی اوٹ میں دبک گئیں۔ نوجوانوں نے مورچے سنبھال لیے۔ بوڑھوں نے گھروں میں گھس کر دروازے بند کر لیے۔ بستی پر اب ہو کا عالم طاری تھا۔ شمال میں درختوں کی آڑ سے ابھرتی ہوئی تیز روشنی جیپوں کی تھی، جن میں رحیم داد اور غوث بخش لاشاری کے علاوہ تھانے دار اور پولیس کے سپاہی بیٹھے تھے۔ تھانے دار عبدالغنی خان نیازی نے جیپیں گاؤں سے دور درختوں کے ایک جھنڈ کے نیچے رکوائیں۔ جیپوں کے رکتے ہی گھوڑے اور اونٹ بھی ٹھہر گئے۔ جیپوں کی بتیاں بجھا دی گئیں۔ سب سے پہلے تھانے دار باہر آیا۔ رحیم داد اور غوث بخش لاشاری بھی باہر آ گئے۔ دوسرے بھی جیپوں، گھوڑوں اور اونٹوں پر سے اتر کر نیچے آ گئے۔ سب تھانے دار عبدالغنی خان نیازی کے گرد اکٹھا ہو گئے۔ اس نے ایک ڈرائیور کو جیپوں، گھوڑوں اور اونٹوں کی نگرانی پر مقرر کیا، دوسروں کو ساتھ لیا، ضروری ہدایات دیں اور آگے بڑھا۔ سب کچے راستوں پر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بستی کی جانب بڑھے، قریب پہنچے۔ تھانے دار نے کچھ لوگوں کو گرد و نواح میں جگہ جگہ تعینات کیا۔ گاؤں بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ ہر طرف گہری خاموشی چھائی تھی۔ تھانے دار نے قدم آگے بڑھائے۔ رحیم داد اور غوث بخش بھی اس کے ساتھ ساتھ چلے۔ ان کے علاوہ پولیس کی جمعیت تھی۔ سردار درشک کے کارندے اور مزارے تھے، مگر جیسے ہی وہ گاؤں کی حدود میں داخل ہوئے، اچانک ہر طرف سے زور زور سے سیٹیاں بجنے لگیں۔ عورتوں اور بچوں نے حلق کے اندر سے طرح طرح کی آوازیں نکالیں۔ رات کے سناٹے میں ان کا شور اس قدر پرہول اور خوفناک تھا کہ ان پر سراسیمگی اور گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ وہ ٹھٹک کر جہاں تھے وہ وہیں رک گئے۔ عبدالغنی خان نیازی دبنگ اور دھاکڑ پولیس افسر تھا۔ ڈاکوؤں اور خطرناک مجرموں کے خلاف کتنے ہی سنگین معرکے سر کر چکا تھا۔ اس نے فوراً خود کو سنبھالا، پلٹ کر رائفل بردار کانسٹیبلوں کی جانب دیکھا، ہوائی فائر کرنے کا حکم دیا۔ 4-5 فائروں کے بعد تمام آوازیں یک لخت بند ہو گئیں۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ تھانے دار اپنی جمعیت کے ساتھ آگے بڑھا۔ اس کی گردن اوپر اٹھی ہوئی تھی، چال میں دبدبا تھا، لیکن جب وہ اور اس کے ساتھی آبادی کے درمیان پہنچ گئے تو ایک بار پھر زور زور سے سیٹیاں بجنے لگیں۔ خوفناک آوازیں ابھرنے لگیں اور ان کی آوازوں کے ساتھ ساتھ ہر سمت سے پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ وہ اس وقت بالکل کھلی جگہ پر کھڑے تھے اور تاروں کی روشنی میں نمایاں اور صاف نظر آ رہے تھے۔ پتھر کھٹا کھٹ جسموں سے ٹکرانے لگے، کوئی ان کی زد سے محفوظ نہ رہا۔ پتھر نوکیلے تھے اور ان میں ایسی تیز دھار بھی تھی کہ جسم کے جس حصے پر لگتے اسے زخمی کر دیتے۔ ایک بھاری پتھر بھد سے رحیم داد کی پیٹھ پر لگا۔ وہ بے قرار ہو کر پلٹا۔ اسی وقت تو سانگھی سے نکلی ہوئی مٹی کی پختہ گولی اس کے دائیں کندھے کی ہڈی سے ٹکراتی ہوئی گزر گئی۔ وہ تکلیف سے بلبلا اٹھا اور ایک ہاتھ سے کندھا پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ دوسرے بھی پتھروں کی چوٹوں سے بچ نہ سکے۔ ایک نوکیلا پتھر تھانے دار کے سر پر اس طرح لگا کہ اس کی ٹوپی گر گئی، سر جھنجھنا اٹھا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، مگر اس نے ہمت سے کام لیا۔ ٹوپی اٹھا کر سر پر رکھی اور سب کو زمین پر لیٹ جانے کا حکم دیا۔ سب جلدی جلدی پیٹ کے بل لیٹ گئے اور پتھروں اور مٹی کی پختہ گولیوں کی ضد سے بچنے کے لیے سروں کو دونوں ہاتھوں سے چھپانے کی کوشش کی، مگر فرش پر لیٹ جانے کے باوجود پتھروں کی بوچھاڑ سے محفوظ نہ رہ سکے۔ پتھر ان کے سروں پر اور کمر پر، گردن پر، ٹانگوں اور ہاتھوں پر، غرض یہ کہ جسم کے ہر حصے پر کھٹا کھٹ گر رہے تھے، ٹکرا رہے تھے، زخم پر زخم لگا رہے تھے۔ ان کے چاروں طرف پتھر ہی پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ جوابی کارروائی کے طور پر انہوں نے کئی بار پتھر اٹھا کر مارنے کی بھی کوشش کی، مگر اپنے دشمن انہیں کہیں نظر نہ آئے۔
रात के अंधेरे में वो कमीन गाहों में मोर्चे लगाए इस तरह दबके बैठे थे कि उनको देखना और तलाश करना मुमकिन न था। थानेदार अब्दुल गनी सख्त उलझन में मुब्तला था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। पिस्पाई की सूरत में बदनामी का डर था। वो बदनामी मोल लेना न चाहता था। उसकी हवा उखड़ जाती। इलाके पर जो धाक बैठी थी मलिया मेट हो जाती। फायरिंग से वो हद्दुल वसी गुरेज इख्तियार करना चाहता था। बज़ाहिर इसका कोई नतीजा भी बरामद होता मालूम ना होता था। वो इसी उधेड़ बुन में मुब्तला था कि बहड़ों ने नया हरबा आजमाया। उन्होंने तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक सीटियों, खौफनाक आवाज़ों और पथराव के साथ साथ घनी झाड़ियों में भेड़ें और बकरियां दौड़ाना शुरू कर दीं। उनके खुरों की आहटों से ऐसी आवाज़ें उभरीं जिनसे ये तासुर पैदा होता था कि बहुत से लोग नकलो हरकत कर रहे हैं। इस ताज़ा हरबे का खातिर खा नफ्सियाती रद्द अमल हुआ। थानेदार के पास ज़्यादा बड़ी जमीयत न थी। कहीं से कमक मिलने की उम्मीद भी न थी। उसे अपनी अफरादी कुव्वत के मुकाबले में बहड़ों की तादाद बहुत भारी मालूम हुई। दूसरों ने भी यही महसूस किया। पत्थरों की ज़बरदस्त बारिश से सब पहले ही बदहवास थे। थानेदार भी कम परेशान न था। इस असना में एक भारी पत्थर रहीम दाद के सर पर गिरा। पगड़ी सर पर ना होती तो भेजा निकल कर बाहर आ जाता, मगर चोट ऐसी करारी आई थी कि रहीम दाद तड़प उठा। उसने करवट बदली, उठा और बदहवास होकर सरपट भागा। थानेदार ने पलट कर रहीम दाद को देखा। ऐन उस वक्त दो सांगी से निकली हुई मिट्टी की एक ठोस गोली उसकी कनपटी पर इस तरह लगी कि वो चकरा गया। खून की एक धार बहती हुई रुखसार से गर्दन तक पहुंच गई। थानेदार अब्दुल गनी नियाजी इस चोट से संभला भी ना था कि रहीम दाद को भागते देखकर दूसरे भी एक एक करके भागने लगे। थानेदार ने घबरा कर फायरिंग का हुक्म दिया। अपना पिस्तौल निकाल कर खुद भी गोली चलाई, मगर किसी को पता ना था कि वो किस पर गोली चला रहा है। मगर इस अंधाधुंध फायरिंग का ये नतीजा ज़रूर निकला कि पत्थरों की बौछार सुस्त पड़ गई। सबके कदम पहले ही उखड़ चुके थे। थानेदार ने पिस्पा होने ही में आफियत समझी। वो रुक रुक कर पिस्तौल से फायरिंग करता हुआ उठा और भागना शुरू कर दिया। फिर तो ऐसी भगदड़ मची कि जिसका जिधर मुंह उठा उसी तरफ भद भद करता हुआ भागा। पथराव एक बार फिर तेज हो गया और उसमें तेजी पैदा होते ही भागने वालों ने अपनी रफ्तार और भी तेज कर दी। पत्थरों और मिट्टी की गोलियों की चोटें सहते, तकलीफ से बिलबिलाते वो किसी न किसी तरह गांव से बाहर निकले और दरख्तों के उस झुंड की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया जहां जीपें थीं, घोड़े और ऊंट थे। वो बगैर रुके हुए मुसलसल दौड़ते रहे। दरख्तों के झुंड के नीचे पहुंचने पर हर शख्स बदहवास और परेशान था। बुरी तरह हाँप रहा था। जख्मी और घायल था। किसी को हल्के जख्म लगे थे, किसी को गहरे। उनके जिस्म पसीने से शराबूर थे। लिबास खाक से लुथड़े हुए थे। सरों के बाल बिखरे हुए थे। घबराहट और भगदड़ में किसी की टोपी और पगड़ी छूट गई थी और किसी के जूते। थानेदार अब्दुल गनी खान नियाजी बिल्कुल खामोश था। उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही अबतर थी। वो खूब तनोमंद था, लिहाजा भागते वक्त सबसे ज़्यादा उसे परेशानी उठाना पड़ी। चोटें भी ज़्यादा आई थीं। उसकी टोपी भी भागते हुए कहीं गिर गई थी। वर्दी की एक आस्तीन फट गई थी। चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, मगर आंखों में खौफ व हिरास के बजाय शदीद गम व गुस्सा था। वो कनपटी के गहरे ज़ख्म पर एक हाथ से रूमाल रखे हुए था ताकि ज़्यादा खून ना बहे। इसी आलम में वो जीप पर सवार हो गया। रहीम दाद और गौस बख्श लाशारी उसके साथ ही बैठ गए। रहीम दाद ने किसी से नज़रें ना मिलाईं। वो गुमसुम बैठा था। गौस बख्श भी खामोश था। पुलिस वाले दोनों जीपों में बैठ गए। दूसरे घोड़ों और ऊँटों पर सवार हो गए
और जिस रास्ते से दिलावर वाला आए थे उसी रास्ते से कोट अकबर वापस हुए। सरदार अज़मतुल्लाह दरेशक और शाहज़ोर ख़ान मज़ारी बेकरारी से इंतज़ार कर रहे थे। जब वो वापस पहुँचे तो दोनों उनकी अबतर हालत देखकर शशतर रह गए। आलम यह था कि कोई लंगड़ा चल रहा था, कोई कर्राह रहा था, किसी का मुंह सूजा हुआ था, किसी की आँख, किसी की गर्दन अकड़ी हुई थी, किसी के होंठ फटे हुए थे। खून ज़ख्मों से रिस रिस कर जगह जगह स्याह धब्बों की तरह जम गया था। सरदार दरेशक ने हैरान परेशान होकर थानेदार से पूछा, सईं अब्दुल गनी, ये क्या हो गया? ये तू अपने बंदों से मालूम कर लेना, मुझे फ़ौरन वापस थाने जाना है, मरहम पट्टी करानी है, अपनी और अपने जवानों की मेडिकल रिपोर्ट तैयार करानी है। उसने रुक रुक कर कहा, मुलजिमों के ख़िलाफ़ मजबूत केस तैयार कराना है। वो आहिस्ता आहिस्ता हाँपने लगा। सरदार, तुझे फौरी तौर से मजिस्ट्रेट से मिलना होगा। मुलजिमों की ज़मीन कर्क कराने के लिए दफ़ा 145 के तहत अदालत का हुक्म जारी कराना होगा। मैंने चौधरी की दरख्वास्त पर ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करके अदालत में पहले ही चालान पेश कर दिया है। राशिद अहमद वकील को सब पता है। तू जैसा कहता है वो तो मैं करा लूँगा, पर यह तो बता ये सब कुछ हुआ कैसे? वो बदस्तूर हैरत ज़दा था। मैंने कहा ना, तू सारी तफसील लाशारी या अपने किसी भी बंदे से मालूम कर लेना। ये कहते कहते उसके वजूद में छुपा हुआ थानेदार जाग उठा। आंखों से शरारे उड़ने लगे, लहजा तल्ख हो गया। मुझे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रिपोर्ट करनी है, पुलिस की ज़बरदस्त फोर्स इकट्ठी करनी है। दिलावर वाला के एक एक बोहड़ की मूंछ पेशाब से ना मुंडवाई तो अब्दुल समी खान न्याजी के नुत्फ़े से नहीं। वो गुस्से से धाड़ा, उनके मकानों को मिस्मार कराना है, फसलों को आग लगवानी है, जनानियों के सरों के बाल कटवाने हैं, उनको बुरहना करके रात भर नचवाना है, उनके मर्दों के सामने नचवाना है, उनके मर्दों को भी नंगा करके नचवाना है। मैं उनको दिखा दूंगा पुलिस से टाकरा लेना मखौल नहीं है। ऐसी इबरतनाक सज़ा दूंगा, जिंदगी भर याद रखेंगे। सरदार दरेशक ने थानेदार को रोकने के लिए इसरार किया, मगर वो ना रुका। दोनों जीपों में ज़ख्मी और खस्ता हाल कांस्टेबलों के साथ बैठकर राजनपुर वापस चला गया। सरदार दरेशक ने अपने कारदार गौस बख्श लाशारी से कुरेद कुरेद कर एक एक तफसील मालूम की। जब तमाम बातें सामने आ गईं तो वो भी सख्त बरहम हुआ। बूढ़ों की सरकशी के ख़िलाफ़ जज्बाई इंतकाम सवा हुआ, मगर रहीम दाद तमाम वक्त खामोश बैठा रहा। पूछने पर भी कुछ ना बोला। उसका जोड़ जोड़ दुख दिया था। आंखें सुलगती हुई मालूम हो रही थीं। वो सरदार दरेशक के पास ज़्यादा देर ना ठहरा, अपने कमरे में गया और बिस्तर पर जाकर लेट गया। दिन ढले रहीम दाद ने गुस्ल किया, लिबास तब्दील किया, कमरे से बाहर निकल कर डेरे के सहन में पहुंचा तो शाम दरो दीवार से आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रही थी। सरदार शाहज़ोर मज़ारी सहन में अकेला बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। वो उसके पास पहुंचा और एक कुर्सी पर बैठ गया। शाहज़ोर मज़ारी ने उसकी दिलजोई की, मुस्कुराते हुए गोया हुआ, चौधरी, तुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, चंद रोज़ में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तो ये थानेदार की नाक का मसला बन गया है। तूने सुना नहीं वो क्या कहकर गया है? मैंने सब कुछ सुना है, उसने निहायत संजीदगी से कहा, पर मैं तुझे साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि ना मैंने ज़मीन का कब्ज़ा लेना है, ना इधर ज़मींदारी करनी है। तू क्या कह रहा है? मज़ारी ने हैरत से आंखें फाड़ कर कहा, मैंने इधर हरगिज़ ज़मींदारी नहीं करनी। रहीम दाद अपनी बात पर अड़ा रहा।
मैं तो पहले ही ऐसा सोच रहा था। कल रात जो कुछ दिलावर वाला में हुआ, उसके बाद तो मेरे लिए इधर ज़मींदारी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुझे ज़मींदारी कौन सी चलानी है? शाहज़ोर मज़ारी ने उसकी हौसला अफजाई की कोशिश की। तूने गठवाल को अपना मुख्तार तो बना ही दिया है, वो ज़मींदारी की देखभाल करता रहेगा। उसने रहीमदाद की आंखों में आंखें डाल दीं। चौधरी, ये तो सोच अज़मतुल्लाह को पता चला तो वो तेरे बारे में क्या सोचेगा? कहेगा चौधरी डर गया। दूसरे भी यही कहेंगे। अगर वो ऐसा सोचेंगे तो ठीक ही सोचेंगे। रहीमदाद ने पर्दापोशी की कोशिश न की। हकीकत ये है कि रात के हौलनाक वाक़े के बाद वो बहुत खौफज़दा हो गया था। जो कुछ हो चुका वही कम नहीं, आगे जो कुछ होने वाला है इसके बारे में तो मैं सुनना भी नहीं चाहता। मुझे पता है थानेदार ने जो कुछ कहा है वो ऐसा कर सकता है और ज़रूर करेगा। तू भी यही चाहता है। अज़मतुल्लाह तरेशक तो बिल्कुल ऐसा ही चाहता है। पर मैं किसी तौर इस ख़तरनाक झगड़े में शरीक होना नहीं चाहता। तू चाहे मुझे बुज़दिल कहे या डरपोक, मैंने तुझे अपने दिल की बात साफ साफ बता दी। पर यह तो सोच मुकदमे का क्या बनेगा, ज़मीन का क्या होगा? सरदार शाहज़ोर मज़ारी ने परेशान होकर कहा। तू मेरी एक मदद कर सकता है? क्या मदद चाहता है? सरदार मज़ारी ने बेचैन होकर सवाल किया। मैं दिलावर वाला की ज़मीन फ़रोख्त करना चाहता हूँ। रहीमदाद ने अपना अंदिया ज़ाहिर किया। तूने मेरी अब तक बहुत मदद की है, एक मदद और कर दे। मुझे इस ज़मीन का कोई हक़ मुहैया कर दे, और अगर तू लेना चाहे तो मैं खुशी से तुझे पे कर दूंगा। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। तुझसे तो कुछ लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ज़मीन तो सच पूछ तेरी ही है, तूने ही अलाट कराई है। मेरे लिए तो इधर ज़मीन लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सरदार मज़ारी ने साफ इनकार कर दिया। ये तमंदर शक का इलाका है, इसके लिए तो अज़मतुल्लाह से बात करनी होगी, वो तेरी मदद कर सकता है। उसने एक बार फिर रहीमदाद को समझाने की कोशिश की। वैसे मेरी मर्ज़ी है कि तू ऐसा ना सोच। कल रात जो कुछ हुआ लगता है उससे तू बहुत घबरा गया। चंद रोज़ में सब ठीक हो जाएगा। उसने हल्का कह कहा लगाया। ज़मींदारी में तो कभी कभी ऐसा भी होता है। इससे घबराना और परेशान होना नहीं चाहिए। रहीमदाद उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए बोला। सच पूछ तो मेरा मैनेजर नादिर खान भी यही चाहता है। तुझे पता है वो पिछले दिनों इधर आया था। रहीमदाद ने साफ कोई से काम लिया। बात दरअसल ये है, उधर कोटला हरकशन में छोटे ज़मींदारों और हिस्सेदारों की ज़मीन बहुत सस्ते मोल मिल रही है, और इसलिए मिल रही है कि छोटे ज़मींदारों को सिंध में बैराजों की ज़मीन अलाट हो गई है। वो उधर की ज़मीन बेचकर जल्द से जल्द उधर जाना चाहते हैं। सरदार शाहज़ोर मज़ारी ने उसकी बात काट कर मुदाखलत की। वो जो कुछ चाहते हैं, मुझे इससे कुछ नहीं लेना। ये बता तू क्या चाहता है? मुझे उनकी ज़मीन खरीदने के लिए रुपए की सख्त ज़रूरत है। रहीमदाद ने खुलकर अपना मकसद बयान किया। ये बात तूने पहले बतानी थी, शाहज़ोर ने कदरे तीखे लहजे में कहा। अगर तूने पहले बता दिया होता तो मामला इतना आगे क्यों जाता? मैंने सोचा तू नाराज़ होगा, इसलिए सिर्फ सोचता ही रह गया। इस बार उसने साफ कोई से काम नहीं लिया। रहीमदाद मज़ीद कुछ कहना चाहता था कि इसी असना में सरदार अज़मतुल्लाह तरेशक पहुंच गया। उसने मुस्कुराकर रहीमदाद की जानिब देखा। तू बहुत चुप चुप नज़र आ रहा है। रहीमदाद तो खामोश रहा, मगर शाहज़ोर मज़ारी खामोश ना रहा। उसने कहा, चौधरी इधर ज़मींदारी करना नहीं चाहता, दिलावर वाला की ज़मीन फ़रोख्त करना चाहता है। लगता है कल रात की गड़बड़ ने इसे बहुत तंग किया। अज़मतुल्लाह तरेशक ने बेतकल्लुफ़ी से कहा। फ़िक्र ना कर, चंद रोज़ की गाल है,
پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رحیم داد کے کچھ کہنے سے پہلے ہی شاہزور مزاری بول پڑا۔ یہ ٹھہرا مہاجر، ادھر کی زمینداری اس کے لیے بالکل نیا تجربہ ہے۔ اس نے مسکرا کر عظمت اللہ کو دیکھا۔ ویسے اس نے ادھر کوٹلہ ہرکشن میں زمین بھی خریدنی ہے، سستی مل رہی ہے اور اس کی زمینوں سے ملی ہوئی ہے۔ اس کی خریداری کے لیے اسے روپے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ٹھیک نہیں رہے گا۔ سردار تریشک ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ اس مرحلے پر ایسا کرنے سے تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ اس نے گردن اٹھا کر رحیم داد کی جانب دیکھا۔ چودھری، اب تو میری آن کا سوال پیدا ہو گیا ہے۔ ایسا کر تو دلاور والا کی زمین خرید لے۔ میرے پاس تو ویسے ہی بہت زمین ہے۔ سردار تریشک رضامند نہ ہوا۔ پر یہ زمین تو تیری آن کا مسئلہ بن گئی ہے، اسے تو تجھے ہی خریدنا چاہیے۔ مزاری نے اپنی بات پر زور دے کر کہا۔ اپنی آن کی خاطر تجھے خریدنا چاہیے؟ تو کہتا ہے تو خرید لوں گا۔ وہ رحیم داد کی جانب متوجہ ہوا۔ بول چودھری، کیا لے گا زمین کا؟ جو تو دے دے، میں نے تجھ سے مول تول تو کرنا نہیں۔ رحیم داد نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا۔ سردار مزاری نے مداخلت کی۔ زمین کا مول تو بعد میں طے ہو جائے گا، پر یہ بات پکی ہو گئی کہ دلاور والا کی زمین اب تیری ہوگی۔ اس نے بات کو طول دینے کے بجائے اختصار سے کام لیا۔ رحیم داد کی جانب متوجہ ہوا۔ چودھری، تو جانے کو کہتا تھا تو واپس جا۔ میں اور تریشک زمین کے مقدمے سے نمٹنے کے بعد کوٹلہ ہرکشن پہنچ جائیں گے۔ وہ مسکرایا۔ کچھ دن تیرے مہمان رہیں گے، وہیں بے نامہ تیار ہوگا اور زمین کی قیمت بھی ادا کر دی جائے گی۔ اور اس نے عظمت اللہ تریشک کی جانب مڑ کر دیکھا۔ میں نے ٹھیک ہی کہا نا؟ تو جیسا کہے گا ویسا ہی ہوگا۔ سردار تریشک نے شاہزور مزاری کی تجویز مان لی۔ زمین کا معاملہ خلوص اور محبت کی فضا میں طے ہو گیا۔ وکیل کے مشورے پر رحیم داد نے عزیز کٹوال کا مختار نامہ منسوخ کر کے سردار عظمت اللہ کو اپنا مختار عام مقرر کر دیا۔ اب وہ جلد سے جلد ڈیرہ غازی خان چھوڑ دینا چاہتا تھا۔ سردار عظمت اللہ تریشک نے گلے لگا کر رحیم داد کو رخصت کیا۔ سردار شاہزور مزاری اس کے ساتھ غازی گھاٹ تک گیا۔ دلاور والا کی زمین کا تنازع حائل نہ ہوتا تو وہ حسب وعدہ اس کے ساتھ لاہور جاتا۔ رحیم داد ایک بار پھر اسٹیمر پر سوار ہوا، دریائے سندھ عبور کیا، مظفر گڑھ پہنچا اور ٹرین میں بیٹھ کر لاہور کی جانب روانہ ہو گیا۔ باب نمبر 44 اگلی ویڈیو میں سنیں۔